वाहिगुरु साहिब जीओ। विसर नाहीं दातार, अपना नाम देहो। गुण गावां दिन रात, नानक चाओ हो। तेरी पन है खुदाए, तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैर दी जय बंदगी। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। वेण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां कह दुख। देहो नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। सतगुरु गरीब नवाज दसां पातशाहियां दे प्रतख प्रगट स्वरूप अंतरजामी शब्द स्वरूप अकाल मूरत संपूर्ण सतगुरु गुरुआं दे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच सभाईमान सत्कारयोग सन्मानयोग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने बड़े प्यार सहित सतगुरां दी गोद विच बैठ के हुणे भाई साहब होरां तो गुरु के सिंघां तो जथे समेत विचारां और गुरबाणी कीर्तन सरवण कीता है। आओ सतगुरां ने अज दा समा बख्शिया है। ये घड़ियां सतगुरु कहंदे एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूं ते आद। ये समा करीब 5-6 मिनट का बनता है। अद्धी तो भी अद्धी घड़ी जे मन जुड़ जाए। ये जिहड़ा शब्द क्या है भगतन सेती गोष्ठ, इहदा मतलब है मन का जुड़ना। क्योंकि दो तरह की भुख, तन की भुख ते मन की, दो भुखां ने साडे विच। मन की भुख संसार विचों किते मिट नहीं सकती, कोई पदार्थ नहीं इत्थे। गुरु अमरदास पातशाह जी एक बचन कहते ने, जगत बड़ा पढ़िया लिखिया है, बड़े सियाणे लोग इत्थे वसदे ने, पर एक गल्लों इहदे विच कमलापन है। ये वो दवाई नहीं खांदा जिहड़ा इहनूं रोग है। रोग होर दवाई होर खाई जांदी। रोग किवें मिटेगा? पहला ऐसा कोई वैद ही नहीं लभदा जिहड़ा बांह फड़ के दसदा है भी तैनूं काहदा दुख काहदा रोग है। गुरु नानक देव जी की जिंदगी विच
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਰੰਭਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਵਿਚਰਨਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਖੇੜਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਰ, ਉਹਦੀ ਬਸੰਤ ਭਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗਮਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰਲੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਪਈ, ਮਿੱਟੀ ਜੰਮ ਗਈ, ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਫੁੱਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਪਏ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਮਲੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੁਰੀਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ 2 ਗਮਲੇ ਪਏ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੁੱਟੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਫੁੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ। ਉਸ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਛੇਤੀ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਸਾਧੂ। ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਪੂਜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਜੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੜ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵੀਏ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੇਵੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬੁੱਧੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਗ ਪੈਗੀ, ਪਕੜ ਕਰੇਗੀ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸੇਵਾ ਤੈਸਾ ਹੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ।
पत्थरां की पूजा कर करके पत्थर हो गए। जिउंदे इंसान की कदर कित्थे रही, जीवित आदमी का कित्थे पता। मैं वो अज विशा कहना, पिछली बारी रह गया सी, भगत नामदेव जी का भाई साहब जी कुदरती कीर्तन कर रहे सन, मैनू याद आ गया ये शब्द रह गया सी। भगत नामदेव जी ने पत्थर दे रब नूं दुध पियाया कि जिउंदे रब नूं, उन्हां दा शब्द आउंदा। मैं अगे जाके बेनती करा, बेनती कर रहा सा, ध्यान देना। उस मुरीद ने उस साधु नूं पुछया बई असली ते नकली साधु की निशानी की। उन्हें कहा ना दोवां फुल्लां विच मैनूं दस फर्क की। उन्हें कहा कोई फर्क नहीं, इक्को जिहे लगदे। कहंदे नहीं फर्क है, इन्हां विचों एक रबड़ दा है ते एक जमीन विच उगया होया है। रबड़ दा फुल है एक जमीन विच उगया। उन्हें क्या इहदा पता किवें लगे? कहन लगे आ बारी खोल दे, हुणे पता लग जाएगा। बारी खोली, बाहरों भवरा उड़ के आया, एकदम सीधा आके उस फुल ते डिगा जिहड़ा जमीन विच उगया होया सी, उत्ते डिग पिया। रबड़ वाले वल गया ही नहीं। उन्हें क्या वेख भवरे ने किनू चुनिया? कहंदे मेरी समझ विच अजे भी नहीं। कहंदे बस जदों फुल दे विच असलीयत होवेगी ते आउण वाले विच सुंघण शक्ति होवेगी, दोवां दा संपर्क हो जाएगा। कल्ला गुरु नहीं ख्याल रखना। असीं ये ते वार वार कही जाने भी साडे गुरु शब्द ने, असीं ये तां वार वार कही जाने साडा गुरु है शब्द, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह। परत के अपने वाल नहीं कदी वेख्या बई सिख भी शरीर कोई नहीं हुंदा, सिख भी सुरत हुंदी है। जे गुरु शब्द है तो सिख किवें शरीर होया? जे गुरु शरीर नहीं तो सिख किवें शरीर? वो तो सुरत है। मत जानना मैं इत्थे आ शरीर लैके आ गया तो मैं इत्थे आ गया, कोई पक्की गल नहीं। हो सकता है मेरा शरीर इत्थे आया होवे, मैं नाम ही आया हूँ। मैं इत्थे आया की पता नाम ही आया हुआ, शरीर आया कला। नाले शरीर ते बड़ी बारी आया है, आप कित्थे आए अजे? जिदन आप आए उस दिन की होवेगा? उस दिन साडा रंग रूप बदल जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब वर्गे हो जाएंगे, गुरु गोबिंद सिंह वर्गे हो जाएंगे, गुरु नानक साहिब वर्गे हो जाएंगे। उस दिन आवांगे, उस तो पहला कोई नहीं आया, बदले ही कुछ नहीं, चेंज ही कोई नहीं आया, तब्दीली कोई नहीं आई। इत्थे आउण दा मतलब ही उस दिन असी आए। सतगुरु ने एक वचन किया बाणी दे विच, कहंदे तो मैं आया शरणी आया। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है। कहंदे मैं उदण ही आया, समझो जिदन मैं शरणी आ गया, तेरा बन गया। उस तो पहला कित्थे आया? बड़े आए बड़े गए। गुरु अमरदास जी की बाणी पढ़ो, सतगुरु कहंदे एक बार नहीं भावें 100 फेरा आवो जाओ, एक बार की गल नहीं है। 100 बारी आओ तो 100 बारी जाओ, 100 बारी आओ तो 100 बारी जाओ। मर्जी तो अपनी करनी है, गुरु की गल तो सुननी नहीं। की करना है? आए तो है ही कोई नहीं। ना गुरु दे आखे लग के खाना पीना बदलिया, ना गुरु दे आखे लग के वेखना बदलिया, ना गुरु दे आखे लग के सोचना बदलिया, ना गुरु दे आखे लग के हथी करन वाले काम बदले ने, ना गुरु दे आखे लग के एक ते भरोसा है, ना गुरु दे आखे लग के गुरु दी रहत मन विच वसी है। आए नहीं अजे। इस करके हजूर ने बचन कीते, कहंदे तो मैं आया शरणी आया। मैं उदण ही आया जिदन मैं तेरी शरण पै गया। शरण का मतलब हुण मैं तेरा हो गया, हुण तू दस किवें जिउणा, मैनू जाच दस दे। इस शब्द नूं आपां सारे पढ़ीए, ध्यान सहित पढ़ना है सारिਆਂ ने, पूरी आवाज़ विच बोलना है। सतगुरु नूं हाजर नाजर जान के गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं तो मैं आया शरणी आया, 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 मैं आया शरणी
किरपा आया भरोसे आया, किरपा आया भरोसे आया, किरपा भरोसे आया, किरपा आया भरोसे आया। हुण इह वेखो तीन चीज़ां ने, शरणी आया, किरपा आया ते भरोसे आया। तीन चीज़ां वाल थोड़ा जिहा ध्यान दईए, शायद साडी जड़ गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लग जाए। साडे मन अजे तो उखड़े फिरने, जड़ ते पता नहीं किधर दी किधर फिरदी। किरपा आया, एक ते कहंदे शरण आउण दा मतलब है बई हुण इस तो अगे मैं अपनी मर्जी नहीं करनी, गुरु की मर्जी लभनी, सतगुरु कराउणा की चाहुंदे। क्योंकि ध्यान देना, आप किसी गुलामी विच नहीं जा रहे। जदों मैं गल कहना भी गुरु की शरण विच आ गए, हुण मेरी मर्जी नहीं चलनी, मन उत्थे घबरा जाता है। मन कहता है कोई भला होया, अपनी मर्जी छुट गई, करांगे की जिंदगी विच, ये तो सारा कुछ खो लिया गया। असी तो गुलाम हो गए, जिंदगी